This is our lecture number 3. Today we are going to solve some standard numericals of your 9th level. So students, hope you all are doing well. So in our previous lecture, lecture number 2, we have already completed what is gravitational force or what is universal law of gravitation, that is F equal to G, capital G, m1 m2 by r square, where G the universal gravitational constant. Okay, and to calculate the acceleration due to gravity, a small g, that is your 9.8 meter per second square. So students, today we shall solve some numericals. Okay, standard numericals, question number 1, 2, 3 and 4. Okay, so before we can go through the numericals, first of all know that what is the formula for weight. नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मास वेट का डिफरेंस, पर वेट का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो देखो, वेट मीन्स नथिंग, दैट इज योर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय आर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय आर इज नथिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय आर. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, that is F equal to ma. Suppose here it is a body and body it's fall down. Okay, body is fall down in downward. Fall down means always accelerates downward direction. So that is your small g, and always downward direction you can take A equal to plus G. We can, or we have already studied, that is your motion under gravity, equation of motion under gravity. So A equal to plus G. So according to Newton's second law, F equal to m into A, or force is denoted or symbolically represent Wt. Okay, what is nothing, the force of gravitation. The force means F equal to Wt and m into G, where we can A is replaced by small g plus g. So weight equal to mg or W equal to mg. This is the formula for weight, mass into acceleration due to gravity. Okay, suppose for mass 1 kg, for mass 1 kg, so here we will put W equal to m, that is 1 into g point small g 9.8. So that is your 9.8. The force, SI unit of force, SI unit of force, that is Newton. So force equal to weight, so we can write as 9.8 Newton. This is the main concept to find out the weight, or its unit is Newton, not kg. Okay, so 9.8 is a derivation or difference between mass and weight. We have, or we will see in the next class, difference between mass and weight. Okay, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला को थोड़ा याद करो, ठीक है, थोड़ा याद करो फॉर्मूला सब। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, नहीं, then to calculate a value of g, small g, that is 9.8 meter per second square, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, it is based on the NTSC KVP also as your 9th class level. Okay, देखो, two bodies P and Q having masses 20 kg and 40 kg. Suppose यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके चलो, नोट कॉपी नहीं है, ठीक है। तो सपोज एक बॉडी है और एक बॉडी है, सपोज ये P है मान लो और ये Q है, ठीक है। कितना केजी? ये 20 केजी का है, P 20 केजी और ये 40 केजी है, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर, उन दोनों को बीच में जो सेपरेशन है डिस्टेंस, सपोज मान लो R, that is your 10 मीटर, ठीक है।
तो a third body, where should a third body S of mass 15 kg, suppose we get from C, so that the net gravitational force on S is 0. तो एक अनदर बॉडी आएगा जिसका मास कितना है 15 kg, तो इसको हम कहां रखेंगे, देन जो फोर्स लगेगा जो थर्ड बॉडी में वो 0 होगा। ठीक है, मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एस इक्वल टू 0, मींस सपोज मैं उसको यहां रखें, सपोज एस ये है, ठीक है, कितना केजी है 15 केजी का मास, मैं इसको कंसीडर किया यहां पे। ठीक है, तो सपोज ये डिस्टेंस कितना है r है, कितना डिस्टेंस r है, तो मान लो सपोज ये जो r इक्वल टू 10 मीटर है, तो डिस्टेंस दे दिया 10 मीटर। सपोज मान लो ये डिस्टेंस, ये तो 10 मीटर है, स्कूलिंग तो डायरेक्ट 10 मीटर, ठीक है, और ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r ले जाओ, ठीक है, तो ये 10 मीटर है, तो मींस ये 15 केजी का, तो ये कितना होगा r माइनस 10 मीटर होगा। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर है तो ये r है, तो ये r माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हम पढ़े थे ना क्या, एक्शन एंड पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोल के पढ़े थे, F12 इक्वल टू माइनस F अप टू 1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वहां पे सपोज ये मान लो ये दोनों बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वो बड़ी यहां से अट्रैक्ट हो रहा है सपोज F1, और ये बड़ी से दोनों जो फोर्स है वो फोर्स F2। ठीक है, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हम उसका इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़े थे, तो मैं डायरेक्शन अलग अलग दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों मास जो है देखो P एंड S, ये दोनों मास में फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों मास में हम फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेट ग्रेविटेशनल S इक्वल टू 0 मींस F1 इक्वल टू F2, ये करना हमको। तो फर्स्ट F1 निकालो, क्या फॉर्मूला था हमारा पास ना, F इक्वल टू क्या था, G m1 m2 by r square, we know that, लिखो we know that, ओके। तो G m 20 kg into 50 kg, 20 into 50 by डिस्टेंस कितना है r, इक्वल टू G F2 S into Q 15 into 40 by r minus 10 rho square। ठीक है, G G कैंसिल हो जाएगा, तो 20 to 15, 15 into 40, m1 m2 by r square। तो देखो ये G G कैंसिल हो गया, देन 20 to 15 and 15 to 4, तो 20 into 15 by r, 15 into 14 by r minus 10 rho square। ठीक है, बस ये कितना होगा by r 600 by r minus 10 rho square। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो उसको कैलकुलेशन के बारे में जो आएगा, उसके कैलकुलेशन बाद में जो आएगा, तो उसको r का वैल्यू कितना मीटर, मीटर में है तो कितना मीटर, तो उसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँ, तुम खुद सॉल्व करो। ठीक है, तो तुम्हारा 4, उसका आंसर 4.14 मीटर आएगा। इसको सॉल्व करो और डिस्टेंस का वैल्यू निकालो, इतना आंसर आएगा 4.14 का। ठीक है, मींस 4.14 मीटर में हम रखेंगे डिस्टेंस, तो ये जो s है तो क्या होगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन s इक्वल टू 0। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स s में क्या होगा 0 का, उसको सॉल्व करो आएगा। ठीक है, बस ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है,
तो ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 9th लेवल में, ठीक है। जाएगा तुम लोग 10th क्लास में दोनों चार्ज को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाला, ठीक है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 2, ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 2 खुद सॉल्व करो, कैलकुलेशन जरूरत है, कैलकुलेशन को हैबिट करो बच्चों, ठीक है। आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F, कैपिटल F, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स मींस हमारा जो दो ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F। हाउ विल दिस फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। हमको मालूम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of two masses and inversely proportional the square of distance between them। तो वहां पे क्या ना डिस्टेंस सपोज हाफ हो जाएगा तो कितना फोर्स चेंज हुआ है, हाउ विल दिस फोर्स मींस फोर्स कैसे चेंज हुआ है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारा। तो सपोज ये डिस्टेंस हाफ हो गया मींस सपोज नेक्स्ट जो फोर्स है सपोज मान लो F है, is inversely proportional, F is inversely proportional 1/r², F is inversely proportional 1/r/2 the whole square, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखो 1/r²/4 तो हो जाएगा 4/r², ठीक है। तो F कितना टाइम्स ऑफ फोर्स वो चेंज हुआ मींस हमको F हमको कैलकुलेट करना है वहां पे। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना, F करेंगे। तो देखो F क्या है बच्चों 4/r²/1/r²। तो उसको देखो करो 4/r² इंटू r² ऊपर जाएगा क्या होगा बाय 1, r² कैंसिल। तो F इक्वल टू 4/1, तो F इक्वल टू 4 इंटू F मीन्स कितना टाइम्स ना 4 टाइम्स फोर्स चेंज होगा। तो यहां पे देखो सो फोर्स बिकम्स कितना टाइम्स ना 4 टाइम्स, force becomes 4 times its previous value, 4 times its previous value। बस इतना ही हमको करना है, ठीक है। तो उसको मैं कंपेयर कर दिया और F का वैल्यू सब सेकंड जो फोर्स है वो फोर्स F ले लिया मैं, उसको करके मैं सॉल्व किया, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, नहीं बढ़िया, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सब आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो द मास ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज 4-fold while that of other is increased 16-fold मींस 44 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है एक बॉडी का मास और 16 टाइम्स का। तो हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी अल्टर्ड so as to retain the same gravitational force between them। तो हमको फॉर्मूला मालूम है F इक्वल टू G m1 m2/r², ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है ना चेंज हो रहा है, कैसे चलने वाला कितना टाइम 4 टाइम्स और 16 से। तो उसको ऐसे लिख सकते हम ना G 4m1 इंटू 16m1 कितना इंक्रीज, ये मास 4 टाइम्स ये मास 16 टाइम्स बाय कितना होगा ना हमारा फॉर्मूला कितना होगा r², ठीक है। तो बस ठीक है, तो m1 m2 पर ये r² मींस इसको r1² ले जाओ, ठीक है। तो देखो यहां पे g कैंसिल, m1 m2 कैंसिल, तो क्या आएगा ना 1/r² इक्वल टू 16 बाय। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे
तो 4 इंटू 16 कितना होगा, ये 64 होगा। तो क्या हो गया ना, 64 आर स्क्वायर इक्वल टू R1 आर स्क्वायर। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो कितना हो जाएगा ना, ये 8 इंटू आर मीन्स R1 इक्वल टू 8R। कितना टाइम्स ना, 8 टाइम्स। कितना डिस्टेंस बिटवीन, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन मींस R1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस। तो वहां पे हम लिख सकते, क्या लिख सकते ना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस शुड बी, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस शुड बी, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस शुड, क्यों देखो R1 इक्वल टू 8R निकला, कैसे उसको मैं सॉल्व करना, क्या 8R आया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस शुड बी 8 टाइम्स द इनिशियल डिस्टेंस, 8 टाइम्स द इनिशियल डिस्टेंस, 8 टाइम्स द इनिशियल डिस्टेंस, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो मास दिया है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो आप लोग, लिखो गिवन क्या है ना, मास 1 kg का दिया है। देन मास ऑफ आर दे दिया है, वैल्यूज ऑफ गिवन दे दिया है। और कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज ये जो एक बॉडी है, वो बॉडी मास 1 kg सरफेस ऑफ द अर्थ में, और ये कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर, जो रेडियस ऑफ अर्थ हम पढ़े थे ये, ठीक है। तो मास कितना दिया है, 1 kg दिया है। रेडियस ऑफ अर्थ मींस आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर, और 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, इसीलिए हम लिख सकते हैं डिस्टेंस को, कितना 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। देन मास ऑफ अर्थ मींस कैपिटल एम कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, ये तो वैल्यू है। देन कैपिटल जी, ये तो फिक्स वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और वी नो दैट फार्मूला F इक्वल टू G M मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी बाय आर स्क्वायर। पुट कर लो 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 6 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू मास 1 kg बाय आर स्क्वायर, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 रॉस। उसको सॉल्व करने के बाद आएगा 9.8। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। मींस जो 1 kg जो मास है, वो मास का जो फोर्स रहेगा कितना, 9.8 न्यूटन। जैसे हम किए थे नहीं, W इक्वल टू mg बोल के, F इक्वल टू mg जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन से कर लो मैं, तो इसे W इक्वल टू mg, तो m 1 kg इंटू 9.8 कितना आया था, 9.8 न्यूटन। तो W इक्वल टू 9.8, तो वहां पे W इक्वल टू फोर्स मींस वेट इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो रहा है। दिस इज द प्रूफ। ओके, ठीक है, इतना स्टार न्यूमेरिकल सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मास एंड वेट का डिफरेंसेस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखेंगे, देखो। देन हम थ्रस्ट प्रेशर बुओयेंसी फोर्स को जाएंगे, उसके बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, अच्छा क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ असेसमेंट दूंगा, उसका सॉल्व करके मुझे पोस्ट करना है, ठीक है। सॉल्व करो, पूरा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, ये सब नोट कॉपी में ही लिखो, मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा असाइनमेंट कॉपी में लिखना, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ यू ऑल, थैंक यू।